or he would revoke the pardon. Portia asked the Duke if he was satisfied, if he was satisfied, and asked what he said, and asked what he said. Third one, Shylock replied positively and added that he was satisfied. He was satisfied. Portia, Clark, please draw a deed of gift. Portia asked Clark to draw a deed of gift. Okay. 37. I had been pleasantly besigned by dignitaries. Change the voice. So here I is the subject, besigned is the verb, dignitaries. So you have to told me that whether I is not subject here, I is object because sentence is given in passive voice. Had been pleasantly, it belongs to past perfect tense. So the find out the correct active voice. What will be the answer? Option A. Option A. Yeah, right. Dignitaries had pleasantly beside me. Okay, dignitaries had pleasantly beside me. Option A is the right answer. Okay. Okay. Second one. Oh, to have the faith of man who wrote this letter. Make it affirmative. Oh, to have the faith of the man who wrote this letter. So a letter to God. हमारे टेक्स्ट बुक का ही सेंटेंस है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish to have the faith of the man who write this letter. I want the faith of the man who write this letter. I wish to have the faith of the man who wrote this letter. Option D, sir. Option D है. ऑप्शन डी ऐसा बोलते हो ना. ओके. हाँ सर. I wish to had I wish to have the faith of the man who wrote this letter. Yeah, this is the right answer. I wish to have the faith of the man who wrote this letter. Okay, right. 39. There was nothing. Question tag. Option B. Okay. ऑप्शन बी आएगा इसमें. 1 minute. Okay. ऑप्शन बी is was it. Okay. नथिंग नेगेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा तो was it right answer. 40. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face. Used to. This is the IMP topic. ये सारे हमारे जो एक्सक्लूडेड टॉपिक है. ओके. उसके मुताबिक ही पेपर स्टाइल है क्योंकि करंट ईयर के पेपर है ब्रज के. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face. Used to. Scarcely निकल जाएगा शायद नेगेटिव. देखो इतना तो आएगा. The colors in the dress were so vivid है उसकी जगह पर टू. ओके. टू vivid that निकल जाएगा और ये she है उसका हो जाएगा for her. पहले डायरेक्टली आंसर बना दो. आप सेंटेंस जानते हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन याद है तो for her. ओके. उसके बाद ये नोटिस है उसकी जगह पर आ जाएगा टू नोटिस द फेस. शो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Okay, A option is the right answer. 41. A tiny hand was raised commandingly. Change the voice. Was raised commandingly. सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है this sentence belongs to passive voice. So you have to convert it into active voice. Option A. Yeah. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं लिखा है बाय वुम.
ओके, सो यू हैव टू इमेजिन। तो यहाँ पर लिखा है शी। ओके, तो यहाँ पर आएगा शी रेज्ड। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, सो शी रेज्ड अ टाइनी हैंड कमांडिंगली। किसी को भी समझ नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, बिकॉज अभी आपके पास ओनली 1 मंथ है। 42 Rajveer had never seen so much greenery before. This sentence also belongs to your textbook. Make it interrogative. चलो क्या आंसर आएगा, पढ़िए आंसर। सर स्क्रीन ब्लर है स्क्रीन सर। स्क्रीन ब्लर नहीं है आपका, नेटवर्क ब्लर कम होगा, नेटवर्क की स्पीड, क्योंकि ये यहाँ मुझे क्लियर दिख रही है स्क्रीन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्यों? बिकॉज इन नेवर है नेगेटिव, तो अफर्मेटिव आएगा। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। हैड राजवीर एवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर? ओके। 43 दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, क्वेश्चन टैग। ये भी आपका एक्सक्लूडेड टॉपिक या इंक्लूडेड टॉपिक है। दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। सर सी। C is the right answer because took belongs to simple past tense. That's why we have to use did. And another here it is no, so the question tag would be affirmative. That's why did they. C is the right answer. Okay. फिर यहाँ पर कॉम्पो है। ओके, कॉम्पो में आपको भेज दूंगा आज, इफेक्ट्स ऑफ कोरोना पेंडेमिक इन अवर लाइफ, क्योंकि कोरोना रिलेटेड पूरे साल यही रहा है, तो शायद इसके रिलेटेड एक कॉम्पो तो होगा एग्जाम में। ओके, डेफिनेटली होगा। चलो, वेंडा पैटर्न्स की का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। Vanda, how many dresses did you say you have hanging up in your closet? Peggy asked. 100, Vanda would say. Incomplete answer है 100, exclamatory sentence है, exclaimed all the little girls incredulously. Okay, yeah, 100 all lined up, said Vanda. वेंडा ने बोला या 100 ड्रेसेस है all lined up in my closet. Okay, so you have to convert it to indirect speech and you have to remember all the rules. Okay, all the rules, all the reporting verbs for paragraph that we have discussed, and you have to decide what the answer is. चलो बोलिए कोई भी आप। Okay, here okay, Peggy. पैगी आस्क्ड वेंडा, इतना तो लिख सकते हो ना आप। ओके, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं आते हैं। ओके, क्योंकि हमारे 50% स्टूडेंट्स इतने हैं, 50% कि जो लोग नहीं जानते रिपोर्टिंग वर्ब्स, तो सिंपली जो रूल्स याद है वो लिखो। ओके, जिससे आपके 1 या 2 मार्क्स आए। और ये तो सिंपली क्वेश्चन है। पैगी आस्क्ड वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस, यहाँ गलती कर सकते हो आप। ओके, वेंडा के लिए यहाँ पर लिखना है शी, डिड को निकाल देना है, और यहाँ पर लिखना है से की जगह पर हैड सेड। Okay, simple past converted into past perfect tense. She had said she had hanging. Okay, she had said she had hanging up in her closet. इस तरह से वेंडा वुड रिप्लाइड, से की जगह पर आपको लिखना है रिप्लाइड। वेंडा वुड रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट। ऑल द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है इनक्रेड्यूलसली। ओके, ऑल द गर्ल्स इनक्रेड्यूलसली एक्सक्लेम्ड दैट she really had 100 dresses. She really had 100 dresses. Vanda replied casually. जो या लिखा है ना, दैट मीन्स कैजुअली, या वेल ऐसा कुछ भी लिखा है तो आप लिख सकते हो इस तरह से, that she had 100 dresses all lined up in her closet.
ओके सर, सो दैट वाज द आंसर। कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप। 37, इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू। Option D. Option D. Okay, D option is the right answer. What a magnificent view it was. Whenever sentence begins with what, वहां पर आर्टिकल कंपल्सरी आएगा ए या एन। एंड इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ हाउ, तो वहां पर आर्टिकल आएगा नहीं। ओके। और इसके अलावा भी हमने 4 या 5 मेथड और पढ़ी है एक्सक्लेमेटरी की। ये जो व्हाट और हाउ वाली है वो तो बेसिक है, दैट यू हैव बीन लर्निंग इट सिंस योर प्राइमरी स्कूल। ओके। 38, ओके थोड़ा ब्लरी है, थोड़ा ध्यान रखना। ऑन दैट लवली ऑटम डे माई लवली डॉटर जैनम अकम्पनीड मी। वो भी आपका टेक्स्ट टेक्स्ट रिलेटेड ही है। क्या करना है इसका? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें से एग्जाम में हो सकते हैं सेंटेंस। ओके, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल है उसमें से मैं क्वेश्चन रखूंगा ओके पेपर में। सो ध्यान रखिएगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो अदर सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। माई लवली डॉटर जैनम, माई लवली। Option Option B. ओके, सिद्धार्थ स्तुति जी आप तीनों साथ में बोले। ओके, आई वॉज अकम्पनीड बाय, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, गलती हो तो बोल देना, क्योंकि मैं भी आपके ही तरह स्पीड में ही देखता हूँ आंसर यहाँ पर। 39, और एमसीक्यू में ये सबसे बड़ी हमारा माइनस पॉइंट है कि हम स्पीडली देखते हैं, थोड़ा वी आर डाइविंग इन द ओशन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, कि जानते हैं चलो जाने दो, तो फिर मार्क्स चले जाते हैं। सो बी पेशेंस, अपनी पेशेंस से सारे आंसर देखिए, एक गलती की वजह से मार्क्स आपका चले जाएगा। They have actually developed underwater robots that are very simple. Correct question tag. क्या आएगा बोलो? इस ये दोनों में से आएगा have they या haven't they? क्या आएगा इसमें से, बी या डी? ओके, डी आएगा, नेगेटिव। ओके, बहुत इजी है। 40, हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी यू स्टार्टेड? हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी यू स्टार्टेड? सिलेक्ट द करेक्ट assertive सेंटेंस। बोलिए। You can but get fired from a company you started. You only can get fired from a company you started. You cannot get fired from a company you started. You can get fired from a company you started. Option C. Option C. Yes, perfect. C is the right answer because it's assertive questions. That's why the this would be negative. You cannot fire from a company you started. Very good. 41. आप में से किसी के पास ब्रज के पेपर है? Yes or no? Okay, no worries. मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक गाला में मास्टरी ले ली है। इट्स ओके गाला फॉर मैथ साइंस एसएस, बट फॉर इंग्लिश देयर आर सो मिस्टेक्स इन गाला एंड एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड। सो जब भी ये लेक्चर मेरा हो ना तो अटेंड करना, जिससे आपको एक्स्ट्रा पेपर्स की प्रैक्टिस मिले, क्योंकि अभी तो आप एक्स्ट्रा परचेस करने वाले नहीं हो कुछ। The liberties of everybody must be curtailed. Select the correct interrogative sentence. This also belongs to your textbook. Okay. मस्ट बी कर्टेल, और आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। बोलिए क्या आंसर होगा? Option मस्ट। C. Option C. यस, जिया सोनी स्तुति, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस सोनी, तुम्हारा पेपर नहीं मिला इस बार मुझे। 42, the room was too dark for me to find my pink gloves. Select the correct sentence without to, that means remove to. The room was so dark that फॉर मी की जगह होगा आई कुड नॉट फाइंड माई पिंक ग्लोव्स। अभी बोलो कहाँ पर है आई कुड नॉट फाइंड माई पिंक ग्लोव्स? B. B. यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, B. या ओके। 43, द विंडो वॉज ब्रोकन yesterday by someone. Select the correct active voice. Was broken,
ये बहुत इजी है, तो आपको ये एक पेज में पूरी समरी होगी। जैसे मैंने आपको ऑफलाइन लेक्चर में बताया था कि एक पेज में पूरे वॉइस के रूल्स की हमने ऑफलाइन में, ओके, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड दैट आई हैव रिवाइज्ड ऑल द ग्रामर टॉपिक्स इन ऑफलाइन लेक्चर। ओके, इवन यू हैव सॉल्व योर डाउट्स टू। मगर कुछ स्टूडेंट्स की ये वॉइस की सेंटेंस फॉर्मेशन ही याद नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ने लेक्चर ही अटेंड नहीं किए थे, सो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये वॉज ब्रोकन है, दैट बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, उसका एक्टिव वॉइस होगा V2। तो समवन ब्रोक द विंडो यस्टरडे, ये इज द राइट आंसर आई थिंक। ओके, ओके, राइट है। हाँ, यस, बोलो। पैसिव वॉइस है तो यस्टरडे कैसे आया उसके क्वेश्चन में? पैसिव वॉइस है तो यस्टरडे कैसे आएगा? ऐसा ऐसा रूल है पैसिव में हाँ, यस्टरडे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है? तो एक्टिव जो चेंज करते तो प्रीवियसली आता वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, यश। था। आप इतना गोल्ड की सेलिंग में डूब गए हो कि वो भूल गए रूल। सही बात है कि रॉन्ग? तो थोड़ा याद है हाँ, तो कर लो। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ओल्ड एज होम IMP है। ओके, फिर कौन से कॉम्पो है इसमें देख लेते हैं। ये व्रज के पेपर बहुत अच्छे हैं, बिकॉज रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक है। और ये लोग जानते हैं शायद कि बोर्ड की एग्जाम में भी ओनली टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही 99% होता है। ओके, स्कूल लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19, चलो ये भी कॉम्पो में भेज दूंगा आपको। ओके, चाइल्ड ओबेसिटी, ओके, ये रेयर केस में कोई, मगर ये IMP है। स्कूल लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19, नो स्कूल लाइफ। ओके, घर पर रहे, स्कूल लाइफ इज ऑनलाइन ओनली। ये मुझे याद करा देना, मैं भूल जाऊँ तो कॉम्पो भेजना। ओके, कौन सा पेपर था? पेपर 3। ओके, ओके, नेक्स्ट पेपर। चलो, बहुत इजी पैराग्राफ आया। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। Ajay, do you want to play with us? Mohan, yes, but I have been too late. I have been too late. Ajay, it doesn't matter. Come in the ground. Mohan, thanks. Okay, चलो बोलो। सिद्धार्थ, आप बोलो, चलो आंसर। Okay, I hope Siddharth is listening. Yes, बोलो। Ajay asked Mohan if he wanted to play with them. If he, If he wanted to play with them. okay, with him. Okay, Mohan replied, Sorry. Okay, तो मैंने गलती okay, your Mohan replied positive. Mohan replied Mohan replied positively but argued that he had been too late. रिप्लाई पॉजिटिवली और बट के लिए कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब बोला आपने? But argued बट आर्ग्यूड। ओके, बोलो नेक्स्ट। गलत है वो, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। uh, Ajay then replied that didn't matter and further added to come in the ground, sorry. ओके, And Mohan ओके, चलो, चलो मैं सॉल्यूशन देता हूँ। अजय आस्क्ड मोहन, डू को निकाल देना है, इफ ही वांटेड टू प्ले विथ देम। अस है इसीलिए। ओके, मोहन रिप्लाई पॉजिटिवली एंड बट लिखा है, यह इधर क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ हेजिटेशन है, बट है तो। ओके, and added with hesitation that he had been too late. He had been too late. Ajay replied Mohan that it did not matter and asked him to come in the ground. Mohan thanked him. Okay, इस तरह से। कुछ डाउट्स है किसी को? Okay, 37. He will get them back. He will get them back. Add question tag. ऑप्शन सी वोंट ही। ऑप्शन सी वांट ही करेक्ट है। ओके, ही विल है तो वांट ही। ओके, 38. The earnings were screwed into the place. The earnings were screwed into place.
Select the correct passive voice. ये दोनों में से आंसर आएगा बिकॉज एक्टिव वॉइस में कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए. ओके, बोलिए. They screwed the earnings into place. Yeah, they had screwed the earning into place. Option C. Yeah, option C is the right answer. Yes, बाकी sir, right है. But sir, ऐसा नहीं होना चाहिए. Select correct active voice. या Active sentence. ये गलत लिखा है. सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस. ओके, अभी क्योंकि एक ऑलरेडी passive. मगर इतना तो सोचो कि ये पैसिव वॉइस है. ये तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक. करेक्ट एक्टिव वॉइस ढूंढना है यहाँ पर. दे स्क्रूड द अर्निंग इनटू प्लेस. Okay, select the correct exclamatory sentence. You are an inquisitive little boy. Article है तो what से बनेगा? Okay, what an inquisitive little boy you are. Option C. Okay, option C is the right answer. Yes, तुम्हारा माइक अभी तुमने रिप्लेस नहीं किया. बहुत रॉरिंग साउंड है उसमें से. 40. I am glad to see you. Select Option correct. C. Option C. Yeah, right. Good. Option C is the right answer. Aren't I? Okay. 41. I am too old to teach you. And I am too old to teach you. यहाँ पर too old है तो so old that I cannot teach you. And I am so old to teach you. Wrong answer. And I am so old that I cannot Option teach you. B. Okay, बाकी के भी देख लेना. I am so old that could गलत है. I am so old that it could not be a. So B option is the right. And I am so old that I cannot teach you. Okay. 42. What is the use of gold as food? Select the assertive sentence. 42. क्या आंसर आएगा इसमें? All of this आएगा. A is the right answer. There is no use of gold as. बोलो. Sir, all of this है ना, क्योंकि सारे में मीनिंग तो सेम ही रहता है. Gold is unable to be ऑप्शन used. डी नहीं आएगा सर. देख लेते हैं. ऑप्शन डी आएगा. एक मिनट. There is no use of gold. ये भी नेगेटिव है. Gold as food is useless. ये भी ओके है. Gold is unable to. Gold is unable to be used. Okay, भी कर सारे नेगेटिव है. ओके, सो डी इज द राइट आंसर. ओके, तो सेम मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो गलती मैंने यहाँ पे पहला देख लिया तो मैंने बता दिया. ओके, डी इज द राइट आंसर. गुड. सो मेरा एक मार्क गया यहाँ पर. राइट. I bought a house on the beach. Select the correct passive voice. ये तो बहुत इजी है. Subject, verb, object. A other word on the beach. I bought a house on the beach. A house was ऑप्शन ए. bought by me on the beach. Yes, option A is the right answer. Fine. Okay, 3-day workshop on personality development. Your diary. Okay, dialogue between sports teacher and famous figure. Dialogue सब लोग बहुत अच्छे लिखते हो. It's very good. डायरी भी लिखते हो अच्छे, मगर कुछ लोग हाफ पेज में कंप्लीट कर देते हैं डायरी. तो मिनिमम 1 पेज लिखो. वो बिकॉज देर आर 5 marks, तो 1.5 पेज तो होने ही चाहिए डायरी में. ओके. और जो आपने मॉडल आंसर सिर्फ देखी है उसमें भी पता है आपको लेंथ तो होनी ही चाहिए बिकॉज वी बिलोंग टू फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई. 45. राज स्टेशनर्स फॉर स्पेशल डिस्काउंट स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट को अवॉइड करो. नोटिस लिखो. ओके, कंपलसरी. फिर थर्ड वाला भी है पोस्टर. कुछ लोग ने पोस्टर डिजाइन किए थे, कुछ आर्टिस्ट थे, मगर मार्क्स जाएंगे. सो आई डू नॉट प्रीफर पोस्टर. आपको नोटिस डिफरेंट अनफेमिलियर लगती है कि हम जानते नहीं है, तभी अवॉइड करो इक्वेशन को. अदरवाइज नोटिस ही लिखो. बहुत इजी है. बॉक्स बनाओ. इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स. और कुछ स्टूडेंट्स जब भी नोटिस होती है तो उसमें एक तो आपको एलिजिबिलिटी लिखनी है. एलिजिबिलिटी मतलब हु कैन सबमिट द फॉर्म, हु कैन पार्टिसिपेट. ओके, बाद में उसमें ड्यूरेशन भी होनी चाहिए. व्हाट इज द लास्ट डेट. ओके, बाद में किसे कांटेक्ट करना है वो भी होना चाहिए. द स्टूडेंट्स कैन कांटेक्ट मिस्टर पंड्या द स्पॉट टीचर फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म. तो ये एलिजिबिलिटी सारी होनी चाहिए. लास्ट डेट, फिर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है,
कब है इवेंट, ओके, और उसकी डिटेल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वो सारी इंक्लूड करो नोटिस। सो नोटिस में आप मैक्सिमम मार्क ला सकते हो, ओके। मैं आपको बाय फोर्सफुली नहीं कर सकता कि पोस्टर मत लिखो और एडवर्टाइज मत लिखो, मगर उसमें मार्क्स जाएंगे, वो मेरी आपको एडवाइस है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? यस बोलो। सर नंबर 14 भी चेक करो ना एक बार, ऑप्शन बी 14 3 जो लास्ट में किया ना क्वेश्चन, ए 43 वाला। हाँ उसमें बी ऑप्शन में वो जो लास्ट में जो अरेंज किया है वो बराबर है कि गलत है? एक बी मिनट, ऑप्शन। एक मिनट। A house was bought by me on the beach. A house was bought on the beach. B, ओके, बी भी करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ओके। आपका डाउट ओके, बी भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलती है क्वेश्चन पेपर में। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें अदर वर्ड्स लास्ट में लिखे, इसमें वर्ब के साथ ही लिखे, ओके, दोनों आंसर सही है। एग्जाम में नहीं होगा ऐसा, डोंट वरी, ओके। कुछ लोग डर जाते हैं कि एग्जाम में ऐसा होगा तो क्या होगा, मगर एग्जाम में 5 या 10 टाइम्स पेपर्स, क्वेश्चन पेपर फिल्टर होते हैं, ऐसे कुछ गलती होती है तो निकल जाती है। रिपोर्ट, ब्लाइंड स्कूल विजिट, न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट करप्शन एंड ब्राइबरी, ओके। ब्राइबरी मतलब किसी को रिश्वत देना, ओके। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ आई, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन का कोई भी नहीं है। चलो ये कंप्लीट हो गए हमारे 3 पेपर जो हमारे आज के टारगेट थे। अभी हम कुछ वॉइस सॉल्व करते हैं, ओके। कहाँ गया वॉइस? यस, चलो। he did not give up the fight even though he was badly bruised। क्या आंसर आएगा इसमें, बोलो। he did not give up the fight even though he ऑप्शन was, सी। सी, ओके, चलो देखते हैं, ये तो रेडी आंसर है। Okay, very good. The fight was not given up by him even though he was badly bruised. Okay, bruised मतलब injure होना। Okay, next, we should avoid tranquilizer in order to have a good health. Tranquilizer ऑप्शन मतलब डी, कौन सा? डी 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 फॉर डॉग। Before dog, tranquilizer should be avoided by us in order to, चलो देख लेते हैं इसमें ही। Okay, correct, good, fine. ओके, ट्रैंक्विलाइजर क्या होती है? जब भी कुछ पेन होता है तो हम जो मेडिसिन लेते हैं, ओके, दैट इज नॉट गुड, दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर। पेन किलर। ओके, पेन किलर, दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। हिज वाइफ unbraved him for his irresponsible handling of the family finance। Voice, he sub his wife, ऑप्शन बी B, बी फॉर चलो, बॉय। right, he was upbraided by his wife for his irresponsible handling of the family finance, okay। किसी को नहीं पढ़ सकते तो बोलना, क्योंकि ये थोड़ा रैपिडली करेंगे तो ज्यादा सेंटेंस हो गए। 5 to 10 मिनट्स करते हैं, बाद में आपके डाउट्स देखते हैं, बाद में हमारी एग्जाम स्टार्ट करते हैं, ओके। शी नेवर अंडरस्टूड मी व्हेनेवर आई सेड समथिंग। बोलो कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस, राइट आंसर। व्हेनेवर आई सेड समथिंग आई वाज नेवर अंडरस्टूड बाय हर, ओके। When I am alone, I hear the footstep of my friend in my imagination. ऑप्शन डी डी फॉर डॉग। Okay, you are wrong. B is the right answer. The footstep of my friend is heard. यहाँ पर देखो I hear लिखा है, that belongs to simple present tense. So voice construction would be is MR plus V3. Okay, so it is the right answer. Is heard by me. यहाँ पर was heard लिखा है तो D नहीं आएगा, okay? सर हाँ बोलो। सर फुटस्टेप तो सॉरी, रिपीट करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फुटस्टेप जहाँ से क्या है वो तो प्लूरल हुआ ना। ओके, चलो बाद में मुझसे बात करो, अब तुम्हारी आवाज आई कैन नॉट गेटिंग यू क्लियरली। When the man coughed, he realized that the men were quite near to him. Voice,
Option C. Option C. Okay, yes, very good. C is the right answer. When the man coughed, it was realized by him. Okay, fine. Next, when she was talking on phone, someone snatched her bag. Her bag was snatched, ऐसा कुछ आएगा. Option A. Option A. Option A. सबके wrong. D is the right answer. Yeah, it is. यहाँ पर देखो, she was talking on phone. Someone snatched her bag. Okay, इसमें तो गलत आंसर लिखा है. D ऐसा नहीं आएगा. Okay, और bag was being ये गलत है. तो Option B आएगा. her bag was snatched by someone. Her bag was Sir, okay. option A. A is the right answer. Okay, B में क्या गलत है? Her bag was snatched by was snatched होना चाहिए, only snatched है तो वो गलत है. C में क्या गलत है? is गलत है. और D में क्या गलत है? was being snatched Was वो being. गलत है. तो A is the right answer. Okay, ये गलत है तो ये आंसर उन्होंने दिया है वो. Can you help me to scoop out the seeds from the melon? Option A. जल्दी से नहीं दी दिया ना आंसर. चलो गलत है. Can you help me? So answer would be can I be helped by you? Can I? देखो B में ऐसा ही होगा. मैं भी गलत है सर. A भी गलत वहाँ है. पे गलत है. नहीं. गलत है. गलत है. A is the right answer. Can I be helped by you? A is the right answer. Okay, देखते हैं इसमें कौन सा. B is the wrong. A is the right answer. देखो can मॉडल ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस B प्लस V3 ऐसा आएगा. ओके, तो आंसर होगा कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू. एग्जाम में भी पहले आप जानते हो सेंटेंस फॉर्मेशन तो आंसर्स मत देखो, पहले आंसर डिसाइड कर लो फिर एमसीक्यू में ढूंढो वो आंसर, तो चांसेस करेक्ट रहेंगे 100%. I tried but could not answer the questions. I tried but could not answer the questions. Option C. Option C. I tried but the questions could not be. Okay, सही है इसमें जो भी हो. Okay, सही है. C. Okay, good. Why do the countries produce nuclear weapons so that anyone cannot harm us? Change the voice. Why do? So simple present tense है. Okay. Option B. Option. Okay, B के अलावा कोई बोलना चाहता है कोई? B के अलावा कोई है आंसर वाले? No, sir. Okay, B है. Okay, right है B. Okay, is MR plus past participle, right. चलो अभी एक पेज कर लेते हैं थर्ड वाला. ओके, बाद में हम कंप्लीट करते हैं. ओके, व्हाई डिड यू थिंक, ये आपके स्टैंडर्ड 10th के रिलेटेड ही है एमसीक्यू. इसमें सारे हैं देखो, इंग्लिश के है, फिजिक्स के है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स. ओके, आप कर सकते हो. कहाँ गया? ओके, व्हाई डिड यू थिंक नेगेटिवली, ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड. डिड है तो सिंपल पास्ट टेंस है. Option B. Why it was thought negatively by you? Always see the positive side. The positive side is always seen. Okay, B. Okay, एक्चुअली कोई भी सही आंसर नहीं है इसमें, क्योंकि why it was इस तरह से नहीं लिखते, why was it इस तरह से लिखते. ओके, why was it thought negatively by you. ओके, तो बी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. हाँ, क्वेश्चन मार्क भी आएगा. क्वेश्चन मार्क तो है ना यहाँ पर. क्वेश्चन मार्क है, बट अगर इट वाज कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के साथ मैच नहीं होगा. तो भी ये सेंटेंस ही पूरा गलत है, तो भी ऐसा असर्टिव नहीं लिख सकते वाई से स्टार्ट वाला. चलो नेक्स्ट. विल द न्यू लोकल. Okay. Will the new local election system satisfy the people of the country? Will the new local election system satisfy the people of the country? B वाला आंसर आएगा भाई. A. Option A. A. Yes, yes, yes. A is the right answer. Good, very good. What can I say about him? He does not keep his words. Option D.
D. Okay, right. What D. can be said by me? By what can be said? कौन सा बोला आपने? डी भी बोला। तो ये तो what can I say about him? तो what can be said by me? ऐसा होगा ना? सर बाय मी पीछे रखे तो भी क्या प्रॉब्लम? व्हाट कैन बी सेड अबाउट हिम बाय मी? अच्छा, अबाउट लास्ट में लिखा है ना बाय मी. ओके फाइन, सो डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. Many people were asking for merciless accountability of corrupt politicians. Many people were asking for merciless accountability of corrupt politicians. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, चलो देख लेते हैं इसमें. डी लिखा है क्यों? ऑप्शन डी. ये कैसे बोल सकते हो आप? वॉज आस्क्ड है यहाँ पर, देखो वॉज वेयर प्लस आईएनजी, तो उसका पैसिव होगा वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3. Okay, how can you write A? Was where plus being plus V3. That should be the answer. And it is written here, was being asked. Okay, so D is the right answer. Answer is right. Last one. Many politicians usually disown the promises when they win the elections. बोलो इसमें. Many politicians usually disown the promises when they win the elections. ऑप्शन डी। D is the right answer. Usually disown a simple present tense है. ओके, तो इजेमार होगा ना. डी में कैसे आएगा? बीन है, आर बीन है, तो किसी भी टेंस को बिलोंग नहीं करता है. सिंपल बात। ओके, सो ये करेक्ट है. आर डिसोन्ड बाय मेनी पॉलिटिशियंस व्हेन द इलेक्शन इज वॉन बाय हिम. ओके, वेरी गुड. चलो, किसी को भी कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए. जो टॉपर्स है, आई एम वेरी मच हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स. ओके, देखो अभी एक हितांशी है और दूसरी झील. ये अभी फर्स्ट पर है, ये मेरा ओपिनियन है. बिकॉज दे राइट देयर, इस बार इन दोनों की मैंने आंसर शीट, मैंने सोचा इन लोगों के तो इस बार 10 मार्क्स काटने ही चाहिए, मगर मिस्टेक्स निकले ही नहीं. इतने परफेक्टली आंसर लिखे. ओके, भले ही उनके टॉप टॉप 5 में नाम नहीं है. by misfortune they missed some of the questions, मगर they are writing their questions perfectly, no grammatical mistakes. So Hitansi and Zil, I think you are present in the class, so keep up this punctuality in grammar. ओके, और नेक्स्ट टाइम कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो आप मिस मत करिए. ओके, फिर दूसरे हमारे जो स्टूडेंट्स है उसकी मैं बात करूं तो एक हैनित. ओके, आपकी हैंड राइटिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए. इसकी वजह से आपके 72 या 74 मार्क्स आते हैं. सो आप इतने फॉर्म में को कॉन्फिडेंस में मत आ जाना. बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसमें से 10 माइनस कर लेना. अगर ऐसा ही लिखा तो बोर्ड में इतने ही आएंगे. ओके, फिर सानिया. ओके, वो भी प्रेजेंट है शायद. तो आपकी भी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अभी तो गाला के पेपर है तो आपने रट लिए है शायद. ओके, मगर ओके, टेक्सचुअल पार्ट इज वेरी गुड, मगर उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी होती है, बट इम्प्रूव हो जाएगी आई थिंक एग्जाम तक. ओके, फिर एक स्तुति सावलिया और एक दूसरी दूसरी स्तुति है वो भी. इनका एक बहुत इसका रिजल्ट अप डाउन होता है. जो स्तुति है दूसरी सुवाग्या और एक स्तुति सावलिया है, उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है सेंटेंस में. सो बी केयरफुल. ओके, फिर ओके, फिर मैं दो नाम भूल गया है हितांशी और झील के साथ. ओके, श्रीधर ब्रांच पर एक जिया और एक क्रिशा. क्रिशा इज एब्सेंट शायद, है लेक्चर में? नहीं है. ओके, नो सर, वो नहीं है। हाँ शायद मैंने नहीं देखा उसका नाम. वो भी परफेक्टली आंसर लिखते हैं, दोनों के आंसर. आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस 4 स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. इट डजंट मैटर वेदर दे आर गेटिंग हाईएस्ट और नॉट इन our exams, but their answers are so perfect. Rarely they make mistakes. कृषा की होती है कहीं बार. ओके, सो बाकी के जो स्टूडेंट्स है, ओके, बाकी के भी बहुत स्टूडेंट्स है. जिल दलसानिया है, हर्षल काथरोटिया है, दे आर अराउंड 65 और 70.
ओके, सो आप आपको मॉडल पेपर देख चाहिए तो मुझे बोलना, मैं आपको भेज दूंगा। आपके क्वेश्चन आंसर और आपके राइटिंग सेक्शन है, ये स्टूडेंट्स के अप टू 75 क्यों जाते हैं मार्क्स? बिकॉज दे आर राइटिंग देयर राइटिंग सेक्शन परफेक्टली। सो इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, पढ़िए। और अभी भी आप कॉम्पो में प्रोवर्ब नहीं लिखते हो, बहुत कम स्टूडेंट्स की मैंने प्रोवर्ब्स देखी। ओके, तो ये थोड़ी कुछ डिपॉजिट करो अपने माइंड में, प्रोवर्ब्स, ऐसे प्रोवर्ब्स होनी चाहिए आपके कॉम्पो में। ओके, they make your essays impressive and will help you to get 7 marks in essay, otherwise 5 तक ही स्टॉप हो जाएगा। बोर्ड की एग्जाम में 90 अप आपको जाना है तो ये सब हो जाएगा। और जो मैंने ये बाकी के 4 स्टूडेंट्स का बोला, ओके, हितांशी, जील, सिया, कृषा, अच्छी तरह सुन लो। कृषा नहीं है मगर उसके फ्रेंड्स है, तो ओके, क्लोज फ्रेंड्स है, तो उनको मैसेज दे देना कि अ, आपके 95 या 90 इतने मार्क्स होने चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस डाउन मत करना। स्टिल हमने अभी तक 3 या 4 एग्जाम आपकी 100 मार्क्स की कंप्लीट हो गई। ओके, और अभी भी एक एक पेपर तो कल है, वो तो गाला का ही है, मगर उसके बाद होगा। अभी गाला में कुछ बचा नहीं है। ओके, वो उसमें सारी टेस्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें अननोन पेपर आएगा। ओके, तो उसमें आपकी टेस्ट हो जाएगी कि कितने पानी में हो आप। और आज भी आप ग्रामर का पेपर दे रहे हो। ओके, वो इसीलिए मुझे 1 घंटा लगा पेपर बनाने के लिए, मगर उससे आपका कुछ बेनिफिट होगा। ओके, आपको भी पता चल जाएगा कि ग्रामर में हमें कितनी मिस्टेक्स करते हैं। ओके, मगर एग्जाम में तो आपको राइटिंग करना ही है। कि अपने इनकम्प्लीट आंसर मत रखो राइटिंग सेक्शन में, जो लेंथ प्रॉपर है वो होनी ही चाहिए। कुछ भी मैनेज मत करो, कुछ भी मैनेज करो। ओके, मगर प्रॉपर लेंथ से आंसर लिखो। ओके, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक और आज की एग्जाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ सर, कितने मार्क का पेपर है? पेपर 50 मार्क्स का है आज ना। हाँ आज। हाँ, 50 मार्क्स का है। और क्वेश्चन 25 ही है, ओनली 25 है। एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, दैट्स वाई 50। सो 25 के लिए 20 मिनट्स इनफ। ओके, कि 25 चाहिए बोलो। ओके, 25 मिनट्स आर इनफ। जैसे ही सर 25 रख दो, या फिर हाँ। ओके, चलो 25 रख देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगी, उसके सून आफ्टर 25 मिनट वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। एंड बाद में आप सबमिट नहीं कर सकते। आप 24 तक सॉल्व कर रहे हो और लिंक क्लोज कर दी, फिर सबमिट आप नहीं कर सकते। ओके, फिर भी मैसेज मत करना सर मेरा पेपर सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। ओके, सो बी केयरफुल टू सबमिट योर पेपर विद इन 25 मिनट्स। ओके, और 25 मार्क्स का पेपर है, सो 1 मार्क के लिए आपको 1 मिनट मिल रही है। ओके, उसमें वॉइस है एक। ओके, चलो मैं बता दूंगा तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। वॉइस में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, ग्रामर में जितने पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़े थे हम, कुछ 7 या 8 टॉपिक्स नए, उसमें से भी हो सकता है। ओके, वर्ब रिलेटेड, टेंस रिलेटेड, इन शॉर्ट एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस विल बी आस्क्ड। ओके, चलो अभी बातें नहीं करनी, हम खत्म करते हैं। कुछ कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे देख लेने दो। ओके, 41 है अभी तक। चलो, तो मैं लिंक एक्टिवेट करता हूँ। कुछ पूछना है कल की एग्जाम के लिए? कुछ डाउट्स है गाला के लिए किसी को? गाला एग्जाम के लिए कल? ओके, वो तो इजी है, आउट ऑफ 6 पेपर कुछ भी आएगा, कट पेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ विद इन 2 मिनट्स। आफ्टर closing this meeting I will activate the link.